شہر حیدرآباد میں لوگوں سے پیسے بٹورنے کے لیے کچھ نوجوان خواجہ سراؤں کا روپ دھارنے لگے۔ پولیس نے کئی نقلی زنخواہوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ ذرائع نے بتایا کہ رات کے اوقات میں کچھ نوجوان سڑکوں پر لوگوں سے پیسے بٹورنے کے لیے خواجہ سراؤں کا روپ دھار رہے ہیں۔ پولیس نے حیدرآباد کے 4 مقامات چادر گھاٹ، چیتنیا پوری، افضل گنج اور جوبلی بس اسٹیشن پر کارروائیاں کی اور نقلی زنخواہوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ حیدرآباد سٹی پولیس کمشنر CV آنند نے اکنا مادانہ مہاکالی مندر سے شروع ہوئے مرکزی بونال جلوس کا استقبال کیا۔ عقیدت مندوں کو بونال تہوار کی مبارکباد بھی پیش کی۔ پرانے شہر حیدرآباد میں بونال تہوار کے دوسرے دن جلوس نکالا گیا۔ مرکزی جلوس اکنا مادانہ مہاکالی مندر سے شروع ہوا اور ناگول چنتا، شالی بنڈا، چار مینار، گلزار ہاؤس اور مدینہ بلڈنگ سے گزرتے ہوئے دہلی دروازہ نیا پل پہنچا۔ تقریباً 25 منادر کے ذیلی جلوس بھی مرکزی جلوس میں شامل ہوئے۔ حیدرآباد سٹی پولیس کمشنر CV آنند نے بونال تہوار کے موقع پر نکالے گئے مرکزی جلوس کا استقبال کیا اور عقیدت مندوں کو بونال تہوار کی مبارکباد بھی پیش کی۔ ان کے ہمراہ ساؤتھ زون کی DCP اسنیہا مہرا و دیگر عہدیدار بھی دیکھے گئے۔ آپ کو یاد دلا دیں کہ پولیس نے جلوس کے دوران کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے سخت حفاظتی اقدامات کیے ہیں۔ ریپڈ ایکشن فورس، سٹی آرم ریزرو، کوئک ریسپانس ٹیموں اور مقامی پولیس کی ٹیموں کو تعینات کیا گیا ہے۔ پولیس نے جلوس پر نظر رکھنے کے لیے ڈرون کیمرے بھی استعمال کیے۔ یہ بونالو کے بونکا عید جو ہے 1 مہینے سے چل رہا ہے۔ گولکنڈہ سے شروعات بلکم پیٹ، مہاکالی اجینی، لال دروازہ، پھر آج آخری دن ہے آج بونالو کا۔ اس میں اکنا مادانہ ٹیمپل سے یہ نکلتا ہے یہ پروسیشن۔ یہاں سے نکل کے سیدھا موسی تک جانے کے بعد وہاں سے پھر واپس ہو جائے گی۔ اس میں اولڈ سٹی ہی نہیں، کئی اور دوسرے زون سے بھی، دوسرے ایریا سے بھی یہاں پہ پروسیشنز آ کے ملتے ہیں۔ تو اس سب کو 1 مہینے کے دوران دوسرے فیسٹیولز بھی آئے تھے، محرم کا بھی آیا تھا۔ یہاں کا عوام جو ہے پورا ایک مل جل کر گنگا جمنی تہذیب کے تحت سب مل کر اپنے اپنے عید مناتے ہیں۔ تو 1 مہینے سے جو چل رہا ہے، کمیٹی ممبرز بھی ہمارے ساتھ رہے ہیں۔ سب کو بھی میں شکریہ ادا پیش کر رہا ہوں، عوام کو بھی شکریہ ادا پیش کر رہا ہوں۔ پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ بھاری پیمانے پر بندوبست کیا گیا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ بار جو کراؤڈز آئے ہیں، عوام آیا ہے مہاکالی اماں کا آشیرواد لینے کے لیے، وہ بہت زیادہ تھا۔ تو اسی لیے ہم کافی نگرانی کر کے یہ شانتی سے ختم ہونے کے بارے میں کافی سوچا ہے، بندوبست کیا ہے۔ یہی نہیں، انڈومنٹ ڈپارٹمنٹ اور گورنمنٹ کے طرف سے وقار آباد ضلع کے تانڈور منڈل میں ایک خاتون نے اپنے شوہر کا قتل کر دیا۔ ذرائع نے بتایا کہ تانڈور منڈل کے ملکا پور گاؤں میں ایک دل دہلا دینے والے واقعے میں ایک شخص کو اس کی بیوی نے انتہائی بے دردی سے قتل کر دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ متوفی اپنی بیوی پر شک کیا کرتا تھا۔ متوفی کی شناخت ریڈی پلی وینکٹیش کے طور پر کی گئی ہے۔ پولیس نے ایک مقدمہ درج کر کے واقعے کی تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔ ملکا پور گاؤں میں ہونے والے قتل نے مقامی لوگوں میں خوف و ہراس پھیلا دیا ہے۔ اس طرح کے واقعات خاندانی تعلقات اور معاشرتی اقدار پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ مقامی لوگوں نے مطالبہ کیا ہے کہ پولیس اس معاملے کی تیزی سے تحقیقات کرے اور انصاف کو یقینی بنائے۔ BRS کے کارگزار صدر KTR کے گفٹ اسماعیل مہم سے متاثر ایک ڈاکٹر جوڑے نے غریب طالبہ کی مالی مدد کی ہے۔ BRS کے کارگزار صدر KTR کے گفٹ اسماعیل مہم نے غریب میڈیکل کی طالبہ کو مالی مدد حاصل کرنے میں مدد کی ہے۔ ڈاکٹر چندر شیکھر اور ان کی اہلیہ جو گلابا گدوال ضلع کی ایک میڈیکل کی طالبہ سشمیتا کو مالی مدد فراہم کرنے کے لیے آگے آئے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ جو گلابا گدوال ضلع کے ایجا منڈل کے وینکٹا پور گاؤں کی میڈیکل کی طالبہ سشمیتا نے حال ہی میں اپنی پڑھائی جاری رکھنے کے لیے ٹویٹر پر
मदद मांगी थी। केटीआर ने सुष्मिता की मदद करने का वादा किया था। डॉक्टर चंद्रशेखर और उनकी अहलिया जो केटीआर के गिफ्ट स्माइल मुहिम से मुतासिर हैं, उन्होंने आगे आते हुए तालिबा को माली मदद फराहम की है। तालिबा सुष्मिता ने अपने अहले खाना के साथ केटीआर और डॉक्टर जोड़े से इजहार तशक्कुर किया है। केटीआर ने भी डॉक्टर जोड़े को तालिबा की मदद करने पर मुबारकबाद पेश। डीसीपी ट्रैफिक एस श्रीनिवास की जेर निगरानी खैरताबाद चौराहे पर ड्रंक एंड ड्राइव ऑपरेशन किया गया। हैदराबाद में ट्रैफिक पुलिस दिन के औकात में भी नशे की हालत में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। पीर को डीसीपी ट्रैफिक एस श्रीनिवास की जेर निगरानी खैरताबाद जंक्शन पर ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम चलाई गई। एडिशनल डीसीपीज एस मोहन, ए रामुलू, एसीपी ट्रैफिक सेंट्रल जोन, सैफाबाद ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों ने इस मुहिम में हिस्सा लिया। आपको याद दिला दें कि नशे की हालत में पकड़े गए ड्राइवर्स को मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई का सामना रहेगा। उन्हें अदालतों में पेश किया जाएगा और भारी जुर्माने भी आयद किए जाएंगे। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने हालत नशा में गाड़ियां चलाने से गुरेज करने का मशवरा दिया है। రోడ్డు ప్రమాదాలు ముఖ్యంగా డ్రైవర్లు తాగి ఉండి డ్రైవింగ్ చేయడం వల్ల చాలా ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. అమాయకులకు ప్రాణహాని, అదేవిధంగా గాయాలు జరుగుతున్నాయి. దాన్ని ప్రివెంట్ చేయడం కొరకు తక్కువ సిబ్బందితో ఎక్కువ ఎఫెక్టివ్గా ఈవెన్ ప్రయాణికులకు ఇబ్బంది లేకుండా ఈ డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ కండక్ట్ చేయడం అనేది లైటనింగ్ డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ అనేది స్టార్ట్ చేశాము. హైదరాబాద్ సిపి గారు, సిబి ఆనంద్ గారు, అదేవిధంగా జాయింట్ సిపి గారు జోయల్ డేవిస్ గారి యొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్స్ తోటి మేము లైటనింగ్ డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ ఎక్కడైతే సిగ్నల్స్ ఉంటాయో, రెడ్ సిగ్నల్ పడగానే అక్కడ 40 సెకండ్లు, 50 సెకండ్లు లేదా 80 సెకండ్లు ఆ సమయంలోనే చక్కచక్క మేము అక్కడ పోయి బ్రీత్ అనలైజర్స్ పెట్టి టెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. వాహనదారులు ఎవరైతే తాగి ఉన్నట్టయితే వాళ్ళ మీద వెహికల్ సీజ్ చేసి వాళ్ళని అదుపులో తీసుకొని వాళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. దీనివల్ల చాలా చక్కటి ఫలితాలు వస్తున్నాయి. 4 days బ్యాక్ మాకు 8 మంది దొరికారు. తర్వాత నిన్న 6 దొరికారు. ఇవాళ సర్ప్రైజింగ్లీ బోనాల తర్వాత అయినా కూడా ఒక్కరు కూడా ఇప్పటివరకు దొరకలేదు. అంటే పబ్లిక్ లో బాగా అవేర్నెస్ వచ్చింది. ఎనీ టైం డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ చేస్తారు హైదరాబాద్ సిటీలో. తాగి ఏ టైంలో నడిపినా కూడా పట్టుబడడం ఖాయం అనేది దీంతో పబ్లిక్ బాగా అర్థమైంది. नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने मदीरा हल्के के दलित बंधु इस्तफादा कुनिंदगान में दूसरी किस्त के चेक्स तकसीम किए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने पीर को मदीरा हल्के के चिंताकानी मंडल के दलित बंधु इस्तफादा कुनिंदगान में रकूम की दूसरी किस्त के चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने याद दिलाया कि चिंताकानी मंडल को दलित बंधु स्कीम के तहत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर उस वक्त मुंतखब किया गया था जब वो CLP लीडर थे और इंतखाबात के बाद भी दलित बंधु स्कीम के इस्तफादा कुनिंदगान को फंड्स जारी किए जा रहे हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने बताया कि फंड्स जिला कलेक्टर के खाते में जमा करवा दिए गए हैं। चिंताकानी मंडल में 3465 इस्तफादा कुनिंदगान है। उनका कहना था कि जिला हुकाम तमाम दलित बंधु यूनिट्स की छानबीन कर रहे हैं। फिलहाल 214 इस्तफादा कुनिंदगान की छानबीन मुकम्मल कर ली गई है और उन्हें फंड्स की दूसरी किस्त के लिए अहल करार दिया गया है और चेक्स दिए जा रहे हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने इस्तफादा कुनिंदगान को मशवरा दिया है कि वो रकूमात का सही तरीके से इस्तेमाल करें और खुद को माली तौर पर मुस्तहकम करें। संगारेड्डी जिले के मोरगी में गवर्नमेंट मॉडल स्कूल के 11 तलबा समेत ग़िज़ा के इस्तेमाल के बाद बीमार पड़ गए। रियासत तेलंगाना के कई अजला में तलबा समेत ग़िज़ा के इस्तेमाल से बीमार पड़ रहे हैं और अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं, लेकिन हुकूमत इस मसले पर काबू पाने के इक़दामात नहीं कर रही है। ताज़ा तरीन वाक़या संगारेड्डी ज़िले के मोरगी गवर्नमेंट मॉडल स्कूल से सामने आया है, जहां पर समेत ग़िज़ा के इस्तेमाल से 11 तलबा बीमार पड़ गए। उन्हें इलाज के लिए नारायण खेड़ अस्पताल मुंतकिल किया गया। साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने तेलंगाना में अराज़ियात की कीमतों में कमी पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर तनकीद की है। BRS रहनुमा हरीश राव ने पीर को परगनापुर में गजवेल हल्के के BRS पार्टी कायदीन का एक इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने तेलंगाना में अराज़ियात की
कीमतों में कमी पर वजीर आला रेवंत रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अगर कोई आंध्र प्रदेश में 1 एकड़ अराजी खरीदना चाहता है तो उसे तेलंगाना में 10 एकड़ अराजी फरोख्त करनी होगी। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि केसीआर के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद अगर वो तेलंगाना में 1 एकड़ अराजी फरोख्त करते हैं तो उन्हें आंध्र प्रदेश में 10 एकड़ अराजी खरीदनी होगी। हरीश राव ने कहा कि अब सूरत हाल बदल चुकी है। रेवंत रेड्डी के 2 साला दौरे हुकूमत के दौरान जमीनों की कीमतों में कमी आई है। हरीश राव ने कहा कि अगर रेवंत रेड्डी मजीद 2 साल तक वजीर आला रहते हैं तो फिर पुराने दिन लौट आएंगे। आंध्र प्रदेश में 1 एकड़ जमीन खरीदने के लिए तेलंगाना में 10 एकड़ जमीन बेचनी पड़ेगी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गैर कानूनी सट्टेबाजी ऐप केस में 4 सरकर्दा फिल्मी शख्सियात को तहकीकात के लिए तलब किया है। गैर कानूनी सट्टेबाजी ऐप केस में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 4 सरकर्दा फिल्मी शख्सियात राणा दग्गुपति, प्रकाश राज, विजय देवरकोंडा और मंचू लक्ष्मी को समन जारी किया है। गैर कानूनी ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स के फरोग के सिलसिले में ईडी की तहकीकात जारी है। जराये ने बताया है कि राणा दग्गुपति को 23 जुलाई, प्रकाश राज को 30 जुलाई, विजय देवरकोंडा को 6 अगस्त और मंजू लक्ष्मी को 13 अगस्त को पेश होने की हिदायत दी। सदर नशीन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। कांग्रेस के सदर और राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे की सालगिरह के मौके पर तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के सदर नशीन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। उनकी सेहत, खुशी और तवील उम्र के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि हुकूमत किसी भी मौजू पर बहस के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले के बाद पेश आने वाले वाकयात पर अपोजिशन के अरकान ने पीर को एहतजाज किया, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई 2 मरतबा मुलतवी कर दी गई। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने अपोजिशन के मुसलसिल एहतजाज पर कहा कि हुकूमत किसी भी मसले पर बात फिल्म हरिहरा वीरामल्लू की रिलीज से कबल अदाकार और आंध्र प्रदेश के नायब वजीर आला पवन कल्याण ने कहा कि उन्होंने कभी फिल्मों को तरजीह नहीं दी। उनकी तवज्जो समाज और सियासत पर मरकूज रही। फिल्म की तशहीरी मुहिमात से दूर रहने के लिए मशहूर पवन कल्याण ने हरिहरा वीरामल्लू की रिलीज से कबल हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। सहाफियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो सिर्फ प्रोड्यूसर AM रत्नम के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए हैं। उन्होंने अपने करियर के बारे में एक वाज़ेह बयान दिया, अपने सियासी और सिनेमा के सफ़र के दरमियान एक वाज़ेह लकीर खींची। पवन कल्याण ने कहा कि सियासी तौर पर उन्हें मुल्क की शोहरत और पहचान हासिल है, लेकिन जब बात सिनेमा की होती है तो वो अपने कुछ साथी अदाकारों से बहुत पीछे हैं। उन्हें दूसरों की तरह बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन नहीं मिलता, क्योंकि उन्होंने कभी फिल्मों को तरजीह नहीं दी। उनकी तवज्जो हमेशा समाज और सियासत पर ही मरकूज रही। जनसेना पार्टी के सरबराह की जानिब से किए गए ये तबसरे उनके सियासी वादों को पूरा करने के लिए दी गई कुर्बानियों पर रोशनी डालते हैं। पवन कल्याण के मद्दा दोनों मैदानों यानी सियासी मैदानों और उनके फिल्मी सफर के दौरान उनकी भरपूर हिमायत को जारी। बांग्लादेश एयरफोर्स का तैयारा खौफनाक हादसे का शिकार हो गया। 19 अफराद जाँ बहक, तकरीबन 160 अफराद जख्मी हो गए। ज़राए ने बताया कि बांग्लादेश में पीर को अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया तैयारा हादसा जैसा मंजर उस वक्त देखने को मिला जब बांग्लादेश फिजाइया का एक तैयारा हादसे का शिकार होकर कॉलेज की छत पर गिर पड़ा। बांग्लादेश एयरफोर्स के जंगी तैयारे FT-7 BGI के साथ ये हादसा पेश आया। परवाज के कुछ ही मिनटों बाद
तैयारा एक कॉलेज की इमारत पर गिर पड़ा। इस हादसे में पायलट की भी मौत हो गई है। कई तलबा की मौत का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। आखिरी इतलात मौसूल होने तक कम से कम 19 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 160 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। जख्मियों में कई की हालत संगीन बताई गई है। तैयारा हादसे की वजूहात का पता नहीं चल सका है। बताया जा रहा है कि जो जंगी तैयारा तबाह हुआ है उसे बांग्लादेश के लिए चीन ने बनाया था। जाए वक़्फ़ पर राहत और बचाव कार्य के काम जारी है। तैयारा हादसे की कई तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं। वीडियोस में देखा जा सकता है कि कुछ लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं। कुछ वीडियोस में जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल करते हुए देखा जा सकता है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बिहार असेंबली के मानसून इजलास के पहले दिन SIR के मामले पर असेंबली के बाहर एहतजाज दर्ज करवाया। बिहार असेंबली का मानसून इजलास पीर से शुरू हुआ। मानसून इजलास के पहले दिन कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने SIR के मामले पर असेंबली के बाहर एहतजाज किया। MLA अख्तरुल ईमान ने कहा कि SIR के अमल पर कोई एतराज नहीं है, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आईनी हक है। उन्होंने याद दहानी करवाई कि साल 2003 में भी SIR किया गया था, लेकिन इस बार हर किसी के लिए ये मुमकिन नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से जो दस्तावेजात मांगे जा रहे हैं वो दस्तावेजात फराहम किए जाएं। लोकसभा ने मानसून इजलास के पहले दिन बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन के कामयाब सफर पर खलाबाज शुभांशु शुक्ला और हिंदुस्तानी खलाई तहकीकी इदारे इसरो को मुबारकबाद पेश की। मानसून सेशन का आगाज पीर से हुआ। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने सुबह 11 बजे ऐवान की कार्रवाई शुरू करते हुए तमाम अराकीन की जानिब से इसरो और शुभांशु शुक्ला को मुबारकबाद दी। कहा कि अराकीन के जज्बात के मुताबिक इस मौजू पर ऐवान में बहस भी कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि वो हिंदुस्तानी खलाई तहकीकी इदारे इसरो और हिंदुस्तानी खला नोर्द शुभांशु शुक्ला को बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन के पहले कामयाब मिशन के लिए ऐवान की जानिब से दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी को पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर और ट्रंप के बयान पर जवाब देना चाहिए। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद मुल्क की यकजहती के लिए हर महाज पर हुकूमत का साथ दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर और फिर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान, ये सब मसाइल मुल्क को झंझोड़ने वाले हैं। इसीलिए वज़ीर आज़म मोदी को पार्लियामेंट में तमाम सवालों का जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद की सूरत हाल पर क़वायद के मुताबिक ऐवान में नोटिस दिया। मारूफ मौरिख मीनाक्षी जैन ने राज्यसभा की रुकन के तौर पर हलफ लिया। मानसून सेशन के पहले दिन 5 नए अरकान को राज्यसभा में आइन के तय वफादारी का हलफ दिलाया गया। ऐवान की कार्रवाई शुरू होने पर राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने मारूफ मौरिख मीनाक्षी जैन, C सदानंदन मास्टर और हर्षवर्धन को हलफ दिलाया। मारूफ स्कॉलर मौरिख और मुहक्किक डॉक्टर मीनाक्षी जैन को तालीम, अदब, तारीख और सियासत में उनकी गैर मामूली खिदमात के लिए सराहा गया। शहरी हवाबाजी के वजीर राम मोहन नायडू ने कहा कि हवाई जहाज हादसों से मुताल्लिक जांच ब्यूरो शफाफ तरीके से अहमदाबाद तैयारा हादसे की तहकीकात कर रहा है। राज्यसभा में सवालों के वक्फे के दौरान ज़िमनी सवालात का जवाब देते हुए शहरी हवाबाजी के वजीर राम मोहन नायडू ने बताया कि हवाई जहाज के हादसों से मुताल्लिक जांच ब्यूरो शफाफ तरीके से अहमदाबाद में तैयारा गिरने के वाक़े की तहकीकात कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये अमल मुताल्लिक़ा बैनुल-अक़वामी माहिरीन और मुताल्लिक़ा एहलकारों को शामिल करते हुए बैनुल-अक़वामी मियारात के ऐन मुताबिक अंजाम दिया जा रहा है। उनका कहना था कि इब्तिदाई मरहले की छानबीन मुकम्मल हो गई है और एक इब्तिदाई रिपोर्ट भी पेश की जा चुकी है। राम मोहन नायडू ने कहा कि उन्होंने न सिर्फ मीडिया बल्कि मगरबी ममालिक के मीडिया में भी ऐसे कई मज़ामीन देखे हैं जिनमें खुद अपने नुक्ता नज़र को बढ़ावा देने की
कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत चाहती है कि वो सच्चाई के साथ खड़ी रहे और तहकीकात मुकम्मल होने के बाद ही उसका इंकशाफ किया जाए। इंडिगो का तिरुपति हैदराबाद तैयारा उड़ान भरने के 19 घंटे बाद ही वापस हो गया। तफसीलात के मुताबिक इंडिगो का हैदराबाद के लिए तिरुपति से रवाना होने वाला तैयारा टेक ऑफ के फौरन बाद वापस हो गया। एयरबस A321 ने तिरुपति एयरपोर्ट से उड़ान भरी। उड़ान के 19 घंटे बाद ही तैयारा तिरुपति वापस हो गया। मुसाफिरीन का कहना था कि इस गैर मुतवक्का वापसी के बारे में उन्हें कोई इत्तला नहीं दी गई। एयरपोर्ट पर मौजूद इंडिगो के ओहदेदारों ने बताया कि तकनीकी टीम ने तैयारे का मुआयना किया। एयरलाइन की जानिब से इस बारे में फौरन कोई बयान जारी नहीं किया गया था। मुसाफिरीन का कहना था कि तिरुपति से हैदराबाद आखिरी परवाज़ थी और तैयारे की वापसी के बाद उनके रहने के लिए कोई मुतबादिल इंतज़ाम भी नहीं किया गया था। मुतासरा मुसाफिरीन के लिए पीर की सुबह एक मुतबादिल परवाज़ का इंतज़ाम किया गया। कर्नाटक के कलाबुर्गी जिले में मार्थर रेलवे स्टेशन के करीब हासन शोलापुर एक्सप्रेस ट्रेन में धुआं फैल जाने से मुसाफिर खौफजदा हो गए। ज़राए ने बताया कि कलाबुर्गी जिले के मार्थर गांव के करीब हासन शोलापुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस की एक बोगी में शदीद धुआं देखा गया, जिसके बाद मुसाफिर खौफजदा हो गए। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रेन शोलापुर जा रही थी कि चौथी बोगी से धुआं उठना शुरू हुआ। मार्थर स्टेशन पर चौकस रेलवे अमले ने तेजी से कार्रवाई की, जिसके बाद ट्रेन को रोक दिया गया। खौफजदा मुसाफिर आग लगने के डर से अपना सामान लेकर कोच से बाहर निकल गए। अमले ने फौरी तौर पर खराबी को दूर करते हुए मरम्मत की और फिर सफर को जारी रखा गया। इस वाक़े में किसी भी किस्म के जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने हुकूमत पर अपोजिशन की आवाज को दबाने का इल्जाम आयद किया है। पार्लियामेंट के मानसून सेशन का पीर से आगाज हुआ और अपोजिशन जमातों ने ऑपरेशन सिंदूर पर बहस का मुतालबा किया, लेकिन ऐवान की कार्रवाई 2 मरतबा मुलतवी कर दी गई। लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने इस पर अपना शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया और इल्ज़ाम आयद किया कि अपोजिशन रहनुमाओं को पार्लियामेंट में बोलने की इजाज़त नहीं है, हालांकि हुकूमत के अरकान बयानात दे रहे हैं। राहुल गांधी ने सवाल किया कि वज़ीर दिफा और बीजेपी के दीगर अराकीन को बोलने की इजाज़त है, लेकिन अगर अपोजिशन में से कोई कुछ कहना चाहता है तो उसे इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही है। उनका कहना था कि वो कायद हिज़्ब इख्तिलाफ है और ये उनका हक है कि वो ऐवान में सवाल उठाएं, लेकिन उन्हें कभी बोलने की इजाज़त नहीं दी गई। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।